तो ये सुनने के बाद कि कैसे भगवान ने ये ज्ञान सबसे पहले विवस्वान को दिया, तो ये सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। Arjuna said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed the science to him? तो ये प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि विवस्वान तो आपसे सीनियर है, तो आप उनको कैसे ये ज्ञान दे सकते थे? प्रभुपाद जी तात्पर्य के बीच में एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखते हैं। Arjuna put this question before Krishna so that he himself could speak authoritatively. That Krishna is the supreme authority is accepted by the whole world, not only at present but from time immemorial. And the demons alone reject him. Anyway, since Krishna is the authority accepted by all, Arjuna put this question before him in order that Krishna would describe himself without being depicted by the demons, who always try to distort him in a way understandable to the demons and their followers. It is necessary that everyone for his own interest know the signs of Krishna. तो वास्तव में अर्जुन तो जानते थे, लेकिन अर्जुन चाह रहे थे कि अन्य सारे लोग उनको भी यह ज्ञान प्राप्त हो। किनसे? डायरेक्टली भगवान से। तो अर्जुन चाह रहे थे कि भगवान डायरेक्टली स्वयं के बारे में बोले कि वो उनका पोजीशन क्या है। तो इसलिए हालांकि अर्जुन जानते थे, लेकिन फिर भी अन्य लोगों की भलाई के लिए ये प्रश्न करते हैं। अंत में इस परपुट के अंत में प्रभुपाद जी पॉइंट लिखते हैं, A devotee of Krishna like Arjuna is undoubtedly above any misunderstanding of the transcendental position of Krishna. Arjuna's putting this question before the Lord is simply an attempt by the devotee to defy the atheistic attitude of persons who consider Krishna to be an ordinary human being subject to the modes of material nature. तो अर्जुन को ये ज्ञान की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो अन्य लोग जिनके पास ये ज्ञान नहीं है उनके भलाई के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछते। अभी इसके उत्तर में भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। The personality of God has said, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy. हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे जन्म हम दोनों ने बिताए, एक साथ बिताए, लेकिन मुझे वो सब याद है, लेकिन तुम भूल चुके हो। क्यों भूल गए? क्यों अर्जुन भूल गए और क्यों भगवान नहीं भूले? बॉडी चेंज नहीं होती अर्जुन। हाँ, गुड पॉइंट्स। तो क्योंकि भगवान का शरीर शाश्वत है, कभी चेंज नहीं होता है, और जो साधारण जीव का शरीर बदलता है, और जैसे ही शरीर बदलता है क्या होता है? क्या होता है? पिछले जन्म के बारे में भूल जाता है। तो वही पॉइंट प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं। But the difference between the Lord and Arjuna is that Lord remembered the instant, whereas Arjuna could not remember. That is the difference between the part and parcel living entity and the Supreme Lord. Although Arjuna is addressed herein as the mighty hero, तो यहाँ पर कौन से शब्द से संबोधित कर रहा है? परंतपा, परंतपा, mighty hero। तो उसको रहने दो, कुछ देर के बाद मैं खोलता हूँ उसको।
या आपको बंद करना है तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा. So, although Arjuna is addressed herein as the mighty hero who could subdue the enemies, he is unable to recall what had happened in his various past births. Therefore, a living entity, however great he may be in the material estimation, can never equal the Supreme Lord. Anyone who is a constant companion of the Lord is certainly a liberated person, but he cannot be equal to the Lord. तो अर्जुन कौन है? मुक्त जीव है, भगवान के पार्षद है, तो मुक्त जीव होना ही चाहिए ना. मुक्त जीव है, लेकिन फिर भी क्या है? जीवात्मा है. और इसलिए जीवात्मा कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता. मुक्त जीव भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी भगवान के समान नहीं हो सकता. तो ये अंतर है जीवात्मा और भगवान में. आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, therefore the Lord and the living entity can never be equal in all respects, even if the living entity is as liberated as Arjuna. Although Arjuna is a devotee of the Lord, he sometimes forgets the nature of the Lord, but with the divine grace, a devotee can at once understand the infallible condition of the Lord, whereas a non-devotee or a demon cannot understand this transcendental nature. ठीक है. आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं that we may also note herein that a living entity forgets everything due to his change of body, but the Lord remembers because he does not change his Satchidananda body. He is Advaita, which means there is no distinction between his body and himself. Everything in relation to him is spirit, whereas conditioned soul is different from his material body. And because the Lord's body and self are identical, his position is always different from that of the ordinary living entity, even when he descends to the material platform. तो जीव और भगवान में और क्या क्या अंतर हो सकते हैं? बोलिए. कौन विभु है, कौन अनु है? जीवात्मा अनु है छोटी, और भगवान. ठीक है, गुड. गुणात्मक और मात्रात्मक में अंतर होता है. क्या अंतर? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. क्या अंतर है? मतलब कि जो हमारे में गुण है वो हो सकता है कि वो भगवान में, लेकिन उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है. हमारे में वो कम मात्रा में होगी, भगवान में ज़्यादा अधिक. जैसे ब्यूटी है, तो ब्यूटी हो सकती है कि हमारे में है, लेकिन भगवान में. तो ये समझाने के लिए प्रभुपाद जी कौन से उदाहरण देते हैं? फायर एंड. हाँ, फायर एंड कौन बोल रहा है? हाँ, कोई और बोलिए. डाउट क्या है आपको? I'm checking is this the right analogy? हाँ, वही एनालॉजी ना प्रभुपाद जी. तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए. पार्टिकल गोल्ड माइन में बहुत सारे गोल्ड होता है, और गोल्ड पार्टिकल एक छोटा सा पार्टिकल है, दोनों गोल्ड ही है, तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम है. गोल्ड पार्टिकल की क्वांटिटी बहुत कम है, गोल्ड माइन में बहुत ज़्यादा गोल्ड है. हाँ, तो समान क्या है? क्वालिटी इज सेम. What is same? What is same? Quality is the same. Yes. और कौन सा उदाहरण? सॉल्ट. ओशियन का. हाँ, ओशन का क्या होता है? ओशियन के अंदर भी सॉल्ट होता है, और एक कोई ड्रॉप होती है ओशियन की, उसमें अंदर भी सॉल्ट होता है. क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट डिफर्स, बट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. हाँ, क्वालिटी इज द सेम. ठीक है, तो ये अंतर है. ओके, और क्या अंतर है? क्या मतलब है? भगवान जो है वो सुप्रीमली चेतन है, और हम जो है वो माइनसली चेतन. नहीं, चेतन, दोनों चेतन हैं. तो जो वर्स आपने कोट किया है उसमें क्या अंतर, क्या बताया गया है? समानता क्या है और अंतर क्या है, दोनों श्लोक में बताया गया. सो व्हाट इज सेम इन दैट सेम वर्स दैट यू कोटेड? व्हाट इज सेम बिटवीन द लॉर्ड एंड द जीवा? They are both nitya. They are both nitya and chetan, conscious, eternal, conscious. And what is the difference? Krishna is maintaining everything. नित्यो नित्यानाम चेतनास चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामान. तो जो सारे जीव हैं वो भगवान के ऊपर निर्भर हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, लेकिन भगवान किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं. ही इज आत्माराम आप्तकाम. अगर भगवान की कुछ इच्छा भी है वो अपने आप पूर्ति कर सकते हैं.
किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि हम कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन जीवों के लिए वो संभव नहीं है। और क्या अंतर? भगवान एंजॉयर है और जीवात्मा एंजॉय, मतलब टू नहीं। हाँ ठीक है, एंजॉयर, एंजॉयड। और हम भगवान का भी सही मोड का मिडिल नेचर के अंदर नहीं आ सकते, हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। हाँ, तो भगवान परह परह गुणातीत, गुणातीत, 3 गुणों के अधीन नहीं आते भगवान, लेकिन हम 3 गुणों के अधीन हैं हम। और क्या अंतर? यस। जी, जैसे भगवद गीता के 3वें अध्याय में बताया जा रहा है कि भगवान या सभी जीवात्माओं के अंदर मतलब परमात्मा के रूप में, और जीवात्मा केवल मतलब एक ही। हाँ, तो जीवात्मा जो है वो एक ही शरीर में होता है और उस शरीर के बारे में कुछ तो जानता है, लेकिन भगवान परमात्मा, हाँ, सभी शरीरों में भगवान उपस्थित है और सभी के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो यही अंतर है जिससे भगवान कभी भूलते नहीं हैं, लेकिन जीवात्मा भूल जाता है। तो इस प्रकार भगवान स्वयं के बारे में अभी बताने लगे, स्वयं के गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो आगे बताते हैं। तो अभी प्रश्न उठता है कि ठीक है, अगर भगवान नित्य है, शाश्वत है, कभी भूलते नहीं हैं, तो फिर इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं और कैसे आते हैं? तो सबसे पहले भगवान बता रहे हो कि वो कैसे आते हैं, किस प्रकार के शरीर में आते हैं। अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस श्लोक का अच्छा दुरुपयोग हो सकता है। क्योंकि यहां पर भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। तो जो मायावादी लोग इस श्लोक को सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि मैं प्रकृति के अधीन होता हूं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। तो इसलिए हमारे सारे वैष्णव आचार्यों ने इस श्लोक पर अच्छी तरह से टीका किया है। So we'll read something from Srila Prabhupada. So Prabhupada writes, one should not be misled. और उसके पहले, ठीक है, कोई तो पढ़ी। We'll read a part of the purport. Somebody begin to read. line का purport. 6th verse purport. The Lord has spoken about the peculiarity of his birth, although he may appear like an ordinary person. He remembers everything of his many births, whereas a common man cannot remember what he has done even a few hours before. If someone is asked what he did exactly at the same time one day earlier, it would be very difficult for a common man to answer immediately. He would surely have to dredge his memory to recall what he was doing exactly at the same time one day before. हाँ, प्रभु जी प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहे हैं। अगर किसी को भी पूछा जाए कल इसी समय आपने क्या किया, क्या कर रहे थे, याद है? ठीक है, अगर वही कार्य हर रोज हो रहा है तो याद रखना आसान है, लेकिन सामान्यतः मुश्किल। ठीक है, आगे पढ़िए। And yet men often dare claim to be God or Krishna. One should not be misled by such meaningless claims. Then again the Lord explains his prakriti or his form,
Prakriti means nature as well as Swarup or one's own form. हाँ, तो ये यहाँ पर ये जो शब्द आए प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, तो प्रकृति का मतलब क्या है? नेचर एज वेल एज स्वरूप और वंस ओन फॉर्म. The Lord says that He appears in His own body. He does not change His body, as the common living entity changes from one body to another. The conditioned soul may have one kind of body in the present birth, but he has a different body in the next birth. ओके ठीक है, फिर आगे प्रभुपाद जी वही जीवात्मा और भगवान के बारे में अंतर क्या वो बता रहे कि कैसे जीवात्मा का भौतिक शरीर होता है और फिर भौतिक शरीर बदलते रहता है, तो उसके बारे में प्रभुपाद. हाँ, बट एज फार एज कृष्णा इज कंसर्न, he never ages beyond youth. At the time of the battle of Kurukshetra, he had many grandchildren at home, or in other words, he was sufficiently aged by material calculations. Still, he looked like a young man, 20 or 25 years old. We never see a picture of Krishna in old age, because he never grows old like us, although he is the oldest person in the whole creation, past, present. Brahma Samhita में कौन सा है? अद्वैतमच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च. सबसे आद्यम पुराण, सबसे पुरातन व्यक्ति है, सबसे वृद्ध हैं, लेकिन फिर भी नवयौवनम. तो वही पॉइंट है. सो factually his appearance and disappearance are like the sun's rising, moving before us and then disappearing from our eyesight. When the sun is out of sight, we think that the sun is set, and when the sun is before our eyes, we think that sun is on the horizon. Actually, the sun is always in its fixed position, but owing to our defective, insufficient senses, we calculate the appearance and disappearance of the sun and sky. And because Lord Krishna's appearance and disappearance are completely different from that of any ordinary common living entity, it is evident that he is eternal, blissful knowledge by his internal potency and is never contaminated by material. तो श्रील प्रभुपाद जी अक्सर ये उदाहरण देते हैं सूर्य का. तो जो सूर्य जो है वो हमेशा रहता है. तो जब सूर्यास्त होता है तो इसका मतलब क्या है? सूर्य मर गया? नहीं, इसका मतलब क्या है? कहीं और है, कहीं और है. तो सूर्य तो हमेशा रहता है, केवल कुछ समय के लिए हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं. तो उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत में भी नित्य लीला करते हैं हमेशा. तो केवल कुछ समय के लिए हमें लगता है कि वो नहीं है, लेकिन हर क्षण, हर समय हमेशा भगवान रहते हैं. आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, इस शब्द की व्याख्या देते हैं. द वर्ड माया और आत्म माया refers to the Lord's causeless mercy according to the Vishwakosha dictionary. The Lord is conscious of all of his previous appearances and disappearances, but a common living entity forgets everything about his past body as soon as he gets another body. ठीक है, तो जो आचार्य ने काफ़ी सुंदर टीकाएं दिया है श्लोक के ऊपर, तो हम कुछ पढ़ेंगे. ठीक है, तब तक हम आगे के श्लोक पढ़ेंगे. तो आगे दो श्लोकों में भगवान बताते हैं कि वो क्यों आते हैं. तो इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया? वो कैसे आते हैं, किस प्रकार के शरीर में आते हैं. और आगे दो श्लोक में बताते हैं कि वो क्यों आते हैं. दो प्रसिद्ध श्लोक हैं, हम जानते हैं ये. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्.
Whenever and wherever there's a decline in religious practice or descent of Bharata and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं, the word सृजामि is significant here. सृजामि cannot be used in the sense of creation because according to the previous verse there is no creation of the Lord's form or body since all the forms are eternally existent. Therefore सृजामि means that the Lord manifests himself as he is. तो सृजामि का मतलब क्या है? सृजामि का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि भगवान का कुछ नया शरीर भगवान को प्राप्त होता है और उस नए शरीर में भगवान आते हैं, नहीं। जितने भी अवतार हैं सब शाश्वत हैं और वो केवल अवतार, अवतार का मतलब नीचे आते हैं, प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान के प्रकट लीला, अप्रकट लीला, प्रकट अप्रकट, तो इसलिए वो सूर्य का उदाहरण, सूर्य भी वैसे प्रकट अप्रकट, उसी प्रकार भगवान और उनके अवतार भी प्रकट अप्रकट, तो इसलिए यहां पर यह शब्द उपयोग किया सृजामि। इन द वर्ड टू वर्ड मीनिंग प्रॉपर ट्रांसलेट सृजामि एज मैनिफेस्ट, तो वही मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, प्रकट अप्रकट, तो इसलिए वो शब्द उपयोग किया है सृजामि। और फिर प्रभुपाद जी वो धर्म के बारे में कुछ बता रहे हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, although the Lord appears on schedule, namely at the end of Dwapar Yuga of the 28th millennium of the 7th Manu in one day of Brahma, he has no obligation to adhere to such rules and regulations because he is completely free to act in many ways at his will. He therefore appears by his own will whenever there is a predominance of irreligiosity and a disappearance of true religion. प्रभुपाद जी अपने कुछ लेक्चर्स में बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को इस भौतिक जगत में आने की क्या जरूरत है, तो भगवान क्यों आते हैं, ये भौतिक जगत क्या है, बहुत तुच्छ जगत है ना, भगवान क्यों आते हैं? तो प्रभुपाद जी काउंटर प्रश्न पूछते हैं, भगवान क्यों नहीं आ सकते? वो लोग पूछते हैं कि भगवान क्यों आते हैं, प्रभुपाद जी कहते भगवान क्यों नहीं आते? क्योंकि भगवान तो स्वतंत्र है, स्वराट है, तो क्यों नहीं आ सकते? जो व्यक्ति स्वराट है उनको कौन रोक सकता है? तो वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, वो तो स्वराट है, तो क्यों नहीं आ सकते? कोई जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कि जो गवर्नर है, वो गवर्नर कभी कभी जेल में जाते हैं देखने के लिए कई लोग क्या कर रहे हैं। तो अगर कोई कहता है अरे गवर्नर जेल में कैसे जा सकते, अब क्यों नहीं जा सकते? उनकी मर्जी, जब चाहे जा सकते हैं। उसी प्रकार ये भौतिक जगत भी किसके समान है? जेल के समान है, तो जब चाहे भगवान आ सकते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो शास्त्र के अनुसार भगवान का कुछ स्केड्यूल है। क्या स्केड्यूल है भगवान का? ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार आते हैं साक्षात भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने सब शक्तियों के साथ, अवतारों के साथ, सबके साथ भगवान एक ही बार आते हैं। और कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। कब आते हैं? हाँ, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14। तो अभी कौन सा मनु का राज्य चल रहा है? 7वें। कौन है 7वां मनु? विवस्वान। तो वैवस्वत मनु, विवस्वान का पुत्र वैवस्वत मनु, तो ये 7वां मनु है। और हर एक मनवंतर में कितने दिव्य युग होते हैं? हाँ, 71, 71 दिव्य युगस।
ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने दिव्य युग होते हैं? 1000 Yes, 1000. तो 1000 you divide by 14, you get something like 71. तो 71 दिव्य युग होते हैं, और वो 71 दिव्य युग में जो 28वां दिव्य युग है, उस 28वां दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। समझ में आ गया ना? नहीं आया? कोई और बताएगा? हाँ बोलिए। ब्रह्मा जी की जो लाइफ है वो 100 साल की है, जिसमें से जो एक दिन का कैलकुलेशन है वो इस प्रकार से है कि एक दिन के कैलकुलेशन में 1000 दिव्य युग होते हैं। हाँ, तो आगे 8वें अध्याय में भगवान कहेंगे सहस्र युग पर्यंतम। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है, एक दिन मतलब 12 घंटे, तो उसमें 1000 दिव्य युग। दिव्य युग का मतलब क्या है? चतुर्युग। हाँ, ये चतुर्युग का कॉम्बिनेशन, सत्य त्रेता द्वापर कली। तो 1000 दिव्य युग ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसके अंदर 14 मनु आते हैं, डिफरेंट। हाँ, तो इसमें 14 मनु आते हैं। ठीक है? नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ठीक है? ठीक है, 14 मनु आते हैं। तो अभी एक मनवंतर में कितने दिव्युग आएंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 14। हाँ, 1000 डिवाइडेड बाय 14, वो कितना आता है? 71 के आसपास। 71। समझ में आ गया? 71 दिव्य युग। ठीक है ना? तो आगे बताइए। और उस 71 दिव्य युग में जो 28वां दिव्य युग आएगा, वो 7वें मनु में, 7वें मनु में, उसमें 28वें दिव्य युग के अंदर भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, द्वापर युग। द्वापर युग के अंदर। समझ आ गया? दिव्य युग क्या है पूछ रहे? दिव्य युग एक साइकिल है जिसके अंदर 4 युग हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। ऐसे 1000 बार। हाँ, जब 1000 बार आते हैं तो फिर वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। ठीक है? ओके। तो भगवान तो स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी ये स्केड्यूल को फॉलो करते हैं और इसके अनुसार आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। ठीक है? और फिर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, therefore each and every avatar or incarnation of the Lord has a particular mission, and they're all described in the revealed scriptures. No one should be accepted as an avatar unless he is referred to by scriptures. ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ, तो हर एक अवतार को हम कैसे पहचान सकते हैं? शास्त्र के अनुसार। So, no, it is not a fact that Lord appears only on Indian soil. He can manifest himself anywhere and everywhere and whenever he desires to appear. ठीक है? And in each and every incarnation he speaks as much about religion as can be understood by the particular people under their particular circumstances. देश काल परिस्थिति के अनुसार हर एक अवतार उपदेश देते हैं। But the mission is the same, to lead people to God consciousness and obedience to the principles of religion. Sometimes he descends personally and sometimes he sends his bona fide representative in the form of his son or servant or himself in some disguised form. और फिर प्रभुपाद जी ये प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं, the principles of Bhagavad Gita were spoken to Arjuna and for that matter to other elevated persons because he was highly advanced compared to ordinary persons in other parts of the world. 2 plus 2 equals 4 is a mathematical principle that is true in the beginner's arithmetic class and in the advanced class as well. Still there are higher and lower mathematics. In all incarnations of the Lord, therefore, the same principles are taught, but they appear to be higher and lower in varied circumstances. तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने वही उपदेश दिया है, लेकिन
उन लोगों के लेवल के अनुसार। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा thou shall not kill, किसको मारना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो सब मानने वाले लोग हैं, सब मर्डर लोग हैं। हाँ, तो इसलिए ऐसा उपदेश देना पड़ा उनको। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार वही जो सिद्धांत हैं उनको वो लोगों के लेवल के अनुसार वो बताया जाता है, लेकिन सिद्धांत वही होते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्स, 8th verse, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। To deal with the pious and to annihilate the miscreants as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. So, अभी भगवान कह रहे कि मैं किस लिए आता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। तो असुर लोगों को मारने के लिए और साधु या भक्तों को रक्षा करने। लेकिन क्या राक्षसों को मारने के लिए, असुरों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत है? स्वयं आने की जरूरत है? प्रभुपाद लेक्चर में कहते हैं जैसे कि रावण हो या हिरण्यकशिपु हो, तो अगर भगवान मारना चाहते हैं तो भगवान एक हार्ट अटैक दे सकते हैं? दे सकते कि नहीं? कितना समय लगेगा? एक क्षण में मर जाएगा वो। भगवान को आने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर भगवान ऐसे एक क्षण में मार देंगे तो फिर हम क्या श्रवण करेंगे? तो कुछ दिन पहले हमने रामनवमी मनाई, तो फिर रामायण रहेगा या नहीं? क्या रामायण रहेगा? और हम क्या सीखेंगे और हम क्या श्रवण करेंगे? उसी प्रकार भागवत के 7वां स्कंद, कितने सारे अध्याय? प्रहलाद लीला, हिरण्यकशिपु। तो इसलिए मुख्यतः भगवान क्यों आते हैं? अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को सांत्वना देने के लिए भगवान आते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस पॉइंट को इस तात्पर्य में। As far as the atheistic are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with the demons Ravana and Kamsa. The Lord has many agents who are quite competent to vanquish demons. But the Lord especially descends to appease his unalloyed devotees who are always harassed by the demoniac. तो वो मेन कारण है। और फिर आगे प्रभुपाद जी वो अलग अलग अवतारों की जो टाइप्स हैं उसके बारे में कुछ बताते हैं। वो तो ऑफ कोर्स वो चेतन चेतामृत में डिटेल्स में बताया गया है। ठीक है, हम ये कमेंट्रीज देखेंगे। 6ठा श्लोक के ऊपर कुछ कमेंट्रीज देखेंगे। पढ़िए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यूजुअली कमेंट्रीज को एक कॉन्वर्सेशन के रूप में, एक वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कॉन्वर्सेशन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुना। सो द फर्स्ट सेंटेंस हियर इज स्पोकन बाय कृष्ण। रीड। Though I am without birth, I appear. I descend in the form of devas, humans, and crawling animals and other forms. ओके, तो भगवान कहते हैं कि हालांकि मैं अज, नो बर्थ, तो भगवान अज है, लेकिन फिर भी कितने सारे अवतारों में, कितने सारे योनियों में अवतरित होते हैं। आगे। But what is remarkable about that, the Jeev is also actually without birth and is born again after the destruction of the gross birth. तो अर्जुन प्रश्न कर सकते हैं कि ठीक है, जीव भी अजय है, जीव का जन्म होता है नहीं, जीव भी शाश्वत है, तो फिर क्या अंतर हो गया? तो इसलिए आगे The Lord answers, I have an indestructible body, Avyav Atma. The Jiva is without birth in the sense that he is a soul apart from his body. He takes birth just because of his relationship with the body, which produces ignorance. But my being without birth and my taking birth are not separate from my body, since I am the Lord. Both my birth and my not being born are integral to my स्वरूप। हाँ, तो भगवान बता रहे हैं कि
जो जीव है, जीव शाश्वत है, लेकिन जो शरीर है वो बदलते रहता है। लेकिन भगवान का जीव और शरीर में कोई अंतर नहीं है। भगवान का स्वरूप एक ही होता है और भगवान उसी स्वरूप में हमेशा अवतरित होते हैं। वो वराह अवतार हो सकता है, कूर्मा अवतार या मत्स्य अवतार, हाँ, नरसिम्हा अवतार, जो भी है, जो भी रूप में भगवान आते हैं वो हमेशा उनके स्वरूप, उनके ही स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप में ही आते हैं। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ शरीर बदलता है, ये अंतर है। As such a condition is difficult to occur, it is certainly astounding and inconceivable, and there is no worry that I will take birth in all sorts of wombs like the Jeev who is under the influence of Pap and Punya. For I am the Lord of all the living entities, Bhutanam Ishwarha, not under the control of karma. हाँ, तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अजो अपि सन अव्ययात्मा। तो अव्ययात्मा का मतलब क्या है कि उनका शरीर जो है वो अव्यय, अव्यय का मतलब कभी नाश नहीं होता है। भगवान का शरीर हमेशा शाश्वत रहता है, कभी नाश नहीं होता है। अव्ययात्मा, भूतानाम ईश्वरो, सभी जीवों के वो ईश्वर है। तो लेकिन हालांकि वो सभी जीवों के ईश्वर है, तो भगवान हर एक जीव के साथ आते हैं। सभी जीवों के ईश्वर है, तो इसलिए हर एक जीवात्मा के साथ हर एक योनि में भगवान आते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान भी जीव जैसे बन गया। तो भगवान सूअर के शरीर में भी रहते हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन क्या इसका मतलब भगवान भी वो सूअर जैसे बन गया? नहीं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अजो अपि, हालांकि मैं अजय हूं जीव के जैसे, हालांकि मैं सभी जीवों के ईश्वर हूं, लेकिन फिर भी अंतर है मुझ में और जीवों में। तो क्या अंतर है? अंतर यह है कि भगवान हमेशा अपने दिव्य स्वरूप में आते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। But the Jiva receives bodies of Dev, human and animal according to karma by his subtle body, which causes his bondage. You, the Supreme Lord, are without a subtle body, and you are all pervading and control karma, time and all other elements. The Shruti say, Bahusyam, may I become many. Chandogya Upanishad 6.2.3. From that it is understood that you are the form of the whole universe. When you say I appear in this particular way, I think that must mean that your birth means simply that you are revealing to people the multitude of bodily forms throughout the universe, which are also eternal as types. हाँ, तो जीव है वो अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर को प्राप्त करता है। लेकिन क्या भगवान को कुछ कर्म होता है? नहीं, भगवान को कुछ कर्म नहीं होता है। भगवान स्वेच्छा से इस धरती पर आते हैं। तो जैसे कि जीव है, जीव को कर्म क्यों होता है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर के मन में जो भी विचार है, जो भी इच्छाएं हैं, उनके अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। लेकिन भगवान के लिए वैसा नहीं होता है। आगे। But how can that be? I make my appearance situated in my own form, Prakritim Swam Adhisthaya. हाँ, तो लेकिन भगवान जो है वो भगवान अपने ही स्वरूप में आते हैं। If the word Prakriti means the external material energy, then its controller, the Supreme Lord, becomes my inference a material form, not a special object of realization. तो यहाँ पर ये शब्द प्रकृति आया है। अजो अपि सन अव्यात्मा भूताराम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। तो अगर वो शब्द प्रकृति अगर भौतिक प्रकृति होता तो फिर इसका मतलब क्या?
भगवान भी एक साधारण जीव की तरह है। तो अगर भगवान भी एक साधारण जीव की तरह है, तो फिर भगवत साक्षात्कार का क्या मतलब है, क्या महत्व रहेगा फिर? अगर भगवान भी हमारे जैसे जीव हैं, तो फिर ये भगवान का नाम का जप करना, भगवान की उपासना करना, ये तपस्या करना, ये सब की क्या जरूरत है, क्या मतलब है? तो इसलिए मायावाद सिद्धांत का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जीव और भगवान में कुछ अंतर नहीं है। तो अगर अंतर नहीं है, तो फिर ये सब तपस्या, ये नाम जप, ये सब करने की जरूरत ही क्या है, मतलब ही क्या है? There is no meaning to the whole thing. तो इसलिए आगे बढ़िए। Therefore, in conformity to the Amar Kosh dictionary meaning, samsiddhi prakritim tva imam swarupam cha swabhavsa cha. The word prakriti means swarup in this verse. It does not refer to the material energy which arises from his swarup. The Lord's swarup is Satchidanand, full of eternal spiritual knowledge and bliss. तो इसलिए यहाँ पर प्रकृति शब्द अर्थ क्या है? स्वरूप, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप। तो जब भी भगवान आते हैं, वो हमेशा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही आते हैं। उस स्वरूप से उत्पन्न भौतिक शक्ति नहीं है। यहाँ प्रकृति का अर्थ भौतिक प्रकृति नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। Concerning the word Prakriti, Sridhar Swami says, accepting a form, Prakriti, which is composed of Suddha Sattva. तो प्रकृति का और एक अर्थ क्या है? शुद्ध सत्व। तो भगवान का शरीर जो है वो हमेशा शुद्ध सत्व में होता। Ramanujacharya says, Prakriti means one's own nature, Swabhav. Thus the phrase means, being situated in my nature, I appear with my Swarup Swam by my own will. तो भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं, और उसी सच्चिदानंद स्वरूप में भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान अवतरित होते हैं। In this case, Prakriti means the Lord's nature, which is condensed Satchidananda Ras, which is distinct from material energy. The word Swam along with Prakriti thus indicates my own Swarup, my true form. Yes, so that is the meaning of Prakriti, Krishna's own form. पढ़िए। Madhusudan Saraswati gives the following meaning. I appear situated in my Swarup, being situated spiritually, I act without duality of soul and body. Okay, तो भगवान का स्वरूप में आत्मा और शरीर में कुछ अंतर नहीं है। But if you have indestructible bodies such as Matsya or Kurma, then why do your present form and the previous forms not appear all at once? Okay, तो ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि अगर आपके सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं और सब शाश्वत हैं, तो सभी अवतार एक साथ क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि सब शाश्वत है ना, तो सब एक साथ आना चाहिए। तो ऐसा होता है? नहीं, सब अलग अलग समय पर आते हैं। ऐसा क्यों? I appear through my Maya, coming from myself. Atma means self, thus Atma Maya means my own Maya. Through my Yoga Maya, the functions of the Sach Shakti, Chit Shakti, which both covers and reveals my Swarupas. I appear revealing my present form having covered the previous form. हाँ, तो उसका उत्तर क्या है? यहाँ पर ये शब्द आया है आत्म माया। तो आत्म माया का मतलब क्या है? भगवान के योग माया, अंतरंगा शक्ति। तो भगवान के योग माया जो है वो कुछ भगवान के कुछ अवतारों को छुपा देती है और कुछ प्रकट करती है, कुछ प्रकट कुछ अप्रकट। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जिस अवतार की जरूरत है तो फिर वो अवतरित होते हैं। तो ये सब कौन करता है? योग माया शक्ति या चित शक्ति। तो इसलिए हालांकि सब अवतार शाश्वत हैं, हाँ, वराह मत्स्य कूर्म ये सब
शाश्वत है वैकुंठ जगत में, लेकिन लीला के लिए, उस परिस्थिति के लिए, परिस्थिति के अनुसार कुछ अवतार इस भौतिक जगत में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो ये सब योग माया का कार्य है। Sridhar Swami says, Sambhavami Atma Maya means I appear by my energy of Gyan, Bal and Virya which strongly manifest. तो वो और एक अर्थ है आत्म माया का। तो भगवान की शक्ति, जो ज्ञान, बल, वीर्य, तो ये सब भगवान की शक्ति है। According to Ramanuj, Atma Maya can also mean by my own knowledge. Since Maya can means knowledge in this context. तो और एक अर्थ आत्म माया क्या? भगवान का ज्ञान, ज्ञान शक्ति, चित शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो भगवान की शक्ति के अनुसार भगवान आते हैं। माया वायु नामान ज्ञान। The usage is stated he continually know the sins and pity of all entities by knowledge Maya. Madhusudan Saraswati says Maya means the awareness through that body, Atma, that I am the Lord. Vasudev, devoid of difference between body and soul. तो anyways, तो आत्म माया का अर्थ यहाँ पर क्या है? भगवान की योग माया शक्ति, योग माया शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो भगवान की शक्ति के अनुसार भगवान अवतरित होते हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग अर्थ आचार्यगण समझा रहे हैं ताकि हम इस श्लोक को अच्छी तरह से समझे कि भगवान जो है वो साधारण जीव की तरह नहीं आते हैं। तो मायावत खंडन के लिए आचार्यों ने ये सब कमेंट्री दिया है। ठीक है, किसको कुछ डाउट है अभी तक? जैसे एक क्वेश्चन था कि जैसे जो भगवान के और जो फॉर्म्स हैं, जैसे नरसिंह, बरहा, तो इनके बारे में ब्रह्मा जी को भी पता रहता है? अभी ब्रह्मा जी को जरूरत नहीं है कि सब पता होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जीव है ना, ब्रह्मा जी भी जीव है। तो हालांकि सबसे उत्कृष्ट जीव है, लेकिन फिर भी जीवात्मा है। तो जितना ज्ञान भगवान उनको देते हैं उतना उनको पता होता है। तो अगर भगवान चाहे तो फिर भगवान वो ज्ञान दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं देंगे। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार, हाँ क्या? तो जी जैसे ये हम श्लोक में देख रहे थे कि तीसरे श्लोक में, तो उसमें बता रहे थे कि जैसे भक्त और मित्र का जो वर्णन आया है, तो हम इसमें जैसे जो भगवान के संबंध होते हैं, जैसे माता पिता के रूप में, तो ये भी तो ईर्ष्या नहीं करते। तो यहाँ पर मतलब दो ही बताया, भक्त और मित्र, जो भगवान को जान सकते हैं। हम तो सिद्धांत समझना चाहिए। मित्र का मतलब ऐसा नहीं कि भगवान केवल साक्य रस में सबसे आदान प्रदान करते हैं। सभी प्रकार के रस हैं, लेकिन सभी प्रकार के रस में वो मित्र की तरह ही आदान प्रदान करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ईर्ष्या नहीं, वो मतलब है। ठीक है, जैसे जो ईर्ष्या है तो वो भी भगवान से ही मतलब आई होगी। हाँ, सब भगवान से आता है, वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। इसमें मतलब हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जो भगवान अपनी लीलाओं में ऐसा कुछ, क्या जैसे क्रोध प्रकट करते हैं भगवान अपनी लीलाओं में, तो ऐसे कोई एग्जाम्पल है शास्त्र में जो भगवान इसको भी दिखा रहे हो, ईर्ष्या को? तो जैसे कि हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हम देखते हैं गोपियों के बीच में भी लगता है ईर्ष्या है। हाँ, वहाँ पर भी गोपियों के दो पार्टी है, तो ऐसा लगता है ईर्ष्या है वहाँ पर आध्यात्मिक जगत में। या जब भगवान मिट्टी खाते हैं तो फिर तो माता यशोदा से कंप्लेन किया, अन्य ग्वाल बाल। तो फिर भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा।
तो फिर माता यशोदा ने कहा लेकिन बलराम जी भी कहते हैं कि तुमने मिट्टी खाई। तो फिर कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा नहीं, ये बलराम जी क्रोधित हुए तो इसलिए। तो अभी भगवान दोष देख रहे हैं ना, बलराम में दोष देख रहे हैं, ग्वालबाल में दोष देख रहे हैं। दोष देखने का मतलब क्या है? ईर्ष्या। व्यक्ति दोष क्यों देखता है? ईर्ष्या की वजह से दोष देखता है दूसरे व्यक्ति में, तो ये ईर्ष्या है। जैसे इसमें बता रहे थे कि जो ज्ञान को समझने के लिए मतलब ईर्ष्या से रहित होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि मतलब ईर्ष्या से कैसे? हाँ, ईर्ष्या से कैसे रहित हम? हाँ ठीक है, आप बताइए कैसे हम ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं? मतलब मुझे नहीं पता। हाँ, बाकी लोग बोलिए कैसे हम ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं? मैंने सुना था ऐसे कि भाई ईर्ष्या मतलब वी सी फॉल्ट्स इन अदर्स सो वी कैन सी गुड इन अदर्स, या बाय अप्रिशिएट। ठीक है, ये एक तरीका है। हम अन्य लोगों में, अन्य भक्तों में हम अच्छे गुण देख सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं, ये एक तरीका है। और टॉलरेंस, क्या टॉलरेट करना है? अगर कोई हमारे अवगुणों को बताता है उस चीज़ को सहना। क्या सहन करना? जो भी अगर जैसे हमारे कोई अवगुण है, हाँ, हमें उन्हें बताता है, एक तो मतलब उसको वैल्यूशन मानना अपना, और उससे कैसे हम ईर्ष्या से मुक्त हो जाए? ठीक है, आपका पॉइंट सही है, ठीक है, लेकिन ईर्ष्या से मुक्त होने का क्या तरीका है? उसको मुझे ग्लोरीफाई करना। हाँ, तो वही पॉइंट है, ग्लोरीफाई करना, दूसरों को ग्लोरीफाई करना। और कैन बी लिटिल कंफ्यूजन हो सकता है, बट तो मैंने सुना है मुझे कि जो रूट कॉज ऑफ एनवीनेस है वो भगवान से द्वेष का है। सही है। जब जीवात्मा भगवान के बारे में सुनेगी और उनके नाम कीर्तन का जब करेगी तो भगवान से जब ईर्ष्या द्वेष दूर होगा तो फिर हम दूसरों में भी वो क्वालिटी और गुण देख पाएंगे। हाँ, तो मुख्य बात क्या है? शुद्धिकरण। हरि नाम लेने से, कृष्ण कथा सुनने से क्या होने वाला है? शुद्धिकरण। तो ये सब अनर्थों से हम शुद्ध हो सकते हैं। और कुछ है? और एक दो पॉइंट है। तो इसलिए जितना हम साधना ठीक से करेंगे, हरि नाम ठीक से लेंगे, कृष्ण कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उतना शुद्धिकरण होगा। और We can serve the devotee whom we ठीक feel है, envy towards. ठीक है, हम भक्तों की सेवा कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं। हम ईर्ष्या क्यों करते हैं? जब हम देखते हैं कि किसी दूसरे भक्त में कुछ अच्छे गुण हैं, कुछ क्वालिटी है या कुछ टैलेंट है, स्किल है, तभी हम ईर्ष्या करते हैं ना। तो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति में वो अच्छे गुण देखते हैं, हमें क्या सोचना चाहिए? हाँ, ये भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है, भगवान का प्लान है, तो मैं कौन हूँ भगवान के प्लान में इंटरफेयर करने के लिए? तो जब हम हर एक चीज को भगवान से संबंधित देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ईर्ष्या से दूर हो जाएंगे। आगे 10वें अध्याय में भगवान कहते यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव तम तम एव गच्छत्वम मम तेज अंश संभवम। तो जो भी ऐश्वर्य किसी भी व्यक्ति में हो, वो केवल मेरा एक तुच्छ अंश है। तो इस प्रकार जब हम हर एक चीज को भगवान से संबंधित देखते हैं तो हम ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान के बारे में जब हम जानेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? हाँ, उसके पहले ये पढ़िए, प्रभुपाद जी का लेक्चर है। हाँ, हमारा हाँ, जो वही चल रहा है। If you forget, then you are not God. The Mayavadi philosopher says that I am God, but I have forgotten myself that I am God. So how God can forget? Here it is the evidence. How God can forget. If you forget, then you are not God immediately. There is no other argument. God cannot forget. God remembers always. The Mayavadi philosopher says that I am God. Now I am under illusion of Maya.
I have forgotten myself that I am God, and by meditation I shall become God. This is all nonsense. Nobody, God cannot forget himself, then he is not God. तो ये मायावादी लोग कहते हैं कि अभी हम इस भौतिक जगत में हैं तो इसलिए हम भूल गए कि हम भगवान हैं, लेकिन हम जो भी हमारा मेडिटेशन ये वो जो भी प्रोसेस है उससे हम फिर से हमें पता होगा कि हम भगवान। तो इसको हम कैसे रेफ्यूट कर सकते हैं फिलॉसफिकली? हाँ, तो जब उनको ये प्रश्न पूछा जाता है कि तो अगर तुम भगवान हो तो फिर सूअर कैसे बन गया? भगवान सूअर कैसे बन गया? वो मेरी लीला है, अब मैं भूल गया कि मैं भगवान हूं। तो इसको कैसे रिफ्यूट करेंगे, कैसे खंडन करेंगे इसको? हाँ बोलिए गोपीनाथ। बोल सकते हैं कि मतलब माया ज़्यादा पावरफुल है ना। हाँ, तो अगर वो कहते हैं कि अभी हम माया से प्रभावित होकर हम भूल गए कि मैं भगवान हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि माया भगवान से ज्यादा पावरफुल है। तो इसका मतलब भगवान कौन है? माया है। वो कैसे संभव है? तो सब बकवास है उनका फिलॉसफी। हाँ, तो अगर हम थोड़ा आर्ग्यू करेंगे तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो एनी केस, सो दीज वर्सेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है भैया, नॉट गोइंग थ्रू दिस। ओके, सो नाउ 9th verse। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna। तो भगवान का जन्म और कर्म जानने का क्या परिणाम होगा वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, so Prabhupada is initially beginning to discuss about what is the meaning of liberation. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and many births. Even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahmajyoti of the Lord, is only partial, and there is the risk of returning to this material world. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending this body and does not run the risk of returning to this material world. तो ये असली में मुक्ति है। तो जो ज्ञानी योगी जिनको निर्विशेष भ्रम में मुक्ति प्राप्त होती है, तो वो वास्तव में मुक्ति नहीं है। क्यों? तो इसलिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 2वें अध्याय में देवतागण प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ये अन्य अरविंद अक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धय। तो वो मानते हैं कि वो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन वो वास्तव में मुक्ति नहीं है। क्यों? आरुह्य कृष्णेन, कृष्णेन का मतलब है बहुत कड़ी तपस्या करने के बाद, प्रयास करने के, आरुह्य कृष्णेन परम पदम। ब्रह्मज्योति भी आध्यात्मिक है, तो इसलिए वो भी परम पदम, लेकिन वो प्राप्त होने के बाद परम पदम ततः पतंती अधः, वहां से उनका पतन हो जाता है। क्यों? अनादृत युष्मदंग्रय, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया है। तो इसलिए वो वास्तव में वो मुक्ति नहीं है। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि असलियत में मुक्ति क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति
तो जब जीव समझ जाता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास, वो वास्तव में मुक्त अवस्था है। तो आगे प्रभा जी बताते हैं कि ये जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, इसका मतलब क्या है प्रभा जी बता रहे हैं। So further down Prabhupada is writing, he who accepts this truth on the strength of the authority of the Vedas and of the Supreme Personality of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculation, attains the highest perfectional stage of liberation. तो इसलिए ये सही ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। कैसे? Not by speculation, मनोधर्म के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते। कैसे हम प्राप्त करते हैं? वैदिक अथॉरिटी, श्रुति प्रमाण। तो जब हम परंपरा में वेदों का ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो तभी हम वास्तव में समझ सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। Anyone who understands Lord Krishna to be the supreme, or who says unto the Lord, you are the same supreme Brahman, the personality of Godhead, is certainly liberated instantly, and consequently his entrance into the transcendental association of the Lord is guaranteed. अभी जब प्रभुपाद जी कहते हैं और one who says unto the Lord, you are the same supreme Brahman, personality of Godhead, अभी ये केवल बोलना नहीं है। बोलना आसान है, लेकिन बोलने का मतलब क्या है? पूरे साक्षात्कार के साथ बोलना, फुल फेथ एंड कन्विक्शन, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ ये जानना कि भगवान कौन है? परब्रह्मा, सुप्रीम ब्रह्मन। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, in other words such a faithful devotee of the Lord, वो महत्वपूर्ण, faithful devotee, श्रद्धा के साथ, जब भक्त को ये श्रद्धा होती है कि कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परब्रह्म है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, then he attains perfection. And then he's quoting from the Shvetashvatara Upanishad, tam eva viditvati mrityameti nanya panta vidyate ayanaya. One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead, and there is no other way to achieve this perfection. That there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead is surely in the mode of ignorance and consequently will not attain salvation, simply so to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey, by interpreting the Bhagavad Gita according to mundane scholarship. तो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ सकता है, लेकिन अगर वो परंपरा के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा तो फिर वो समझेगा नहीं। So that is as good as licking the bottle of honey from outside. तो एक प्रवचन में श्री प्रभुपाद जी इस उदाहरण को और अच्छी तरह से समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो शहद का बॉटल है, लेकिन वो उसको खोल नहीं पा रहा है, सील्ड है, तो इसलिए वो क्या करता है? बाहर से चाटता है। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। तो अभी अगला प्रश्न क्या है? वो सील्ड है, सील को कैसे खोलना है? इंस्ट्रक्शन भी होते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शन कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ, सही बात है। तो हमें इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलता है? परंपरा के माध्यम से। तो परंपरा के माध्यम से जब हमें इंस्ट्रक्शन प्राप्त, हम फॉलो करते हैं, तभी हम वो सील को तोड़ सकते हैं, तभी हम उस शहद का आस्वादन कर सकते हैं,
तभी वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान हम समझ पाएंगे. That's the point. Okay. So therefore, Srila Prabhupada in lecture on the verse is saying, okay, ये पॉइंट सामने. तो यहाँ पर दिव्यम, तो ये आचार्य के कमेंट्रीज में बता रहे हैं. So you will be successful just by knowing in truth about my birth, which was previously described, and after my birth my activities. That is expressed in this verse. तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण शब्द हैं. एक है दिव्य. तो दिव्य का मतलब क्या है? नॉन मटेरियल, स्पिरिचुअल. और एक अर्थ क्या है? अनकॉमन. तो ये सब अर्थ हैं दिव्य शब्द का. So as this means that is not related to this material world, also means spiritual. Being spiritual means beyond the gunas. Means that the Lord's birth and activities are eternal. तो ये सब अर्थ है वो दिव्य शब्द का. तो ये सब जानना है कि कैसे भगवान के जन्म और कर्म वो कैसे हैं. हाँ, वो दिव्य का अर्थ क्या है? दिव्य का अर्थ है कि वो आध्यात्मिक है, तीन गुणों से प्रभावित नहीं है. तो ये सब तत्वतः है. दिस इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग तत्वतः. नॉन मटेरियल, स्पिरिचुअल, अनकॉमन, बियॉन्ड द गुणस, इटर्नल. तो ये सब तत्वतः, तत्वतः. दिस इज अंडरस्टैंडिंग द तत्व फिलॉसफिकली. तो यही समझना है. Jiva Goswami also explains, quoting from Bhagavad and Bhagavad Sandarbha, that the Lord has no material birth or activities. और एक अर्थ दे रहे हैं. Or the word divya can mean not approachable by logic or inconceivable on the strength of the words of Shruti and Smriti. तो ये और एक अर्थ है दिव्य का. हम अपने भौतिक बुद्धि के द्वारा हम नहीं समझ सकते. अचिंत्य है. That is the other meaning. The Lord, the one Lord who is inconceivable, they were engaged in eternal pastimes, is spread in the devotees and resides in the devotee's heart. Okay. The other important word is, sorry, ये हो गया ना. The other important word, yo vetti tatvatah, means he who knows that my birth and activities are truly eternal. Based on my statements that I'm unborn with indestructible body, my birth and activities are non-material, not just an appearance of being eternal, depending on some sort of trick. तो ये सब तत्व को जानना चाहिए. तो इसलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं. It is not simply sentimental. केवल कुछ भावुकता नहीं है. So this is the meaning of tatvata, understanding on the basis of shastra all these things. तो इस प्रकार हम समझेंगे तो फिर भगवान के पास जा सकते हैं. ठीक है. Prabhupada's lecture on the verse, read. Tatvatah in truth. Now here the word tatvatah is very important. This tatvatah is the science of Krishna. Science of Krishna. Tatvata means science of Krishna. ये साइंस है, विज्ञान है, भावुकता नहीं है. तो जो भी साइंस है हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? हाँ, परंपरा. ऑथेंटिक पर्सन, ऑथोराइज पर्सन. तो इसलिए कुछ लेक्चर्स में प्रभुपाद जी कहते हैं ना, पान वाले से नहीं समझ सकते भगवान के बारे में. पान वाला नहीं समझ सकते. हाँ, कोई डॉक्टर बन सकता है पान वाले से सुनकर. हाँ, लेकिन यही मूर्खता है. आध्यात्मिक चीजों के बारे में लोग क्या सोचते हैं? हाँ, किसी से भी सुन सकते, चलेगा, वो बाबा कोई भी चलेगा. हाँ, कैसा चलेगा? हाँ, अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं किसी से भी सुनकर, फिर ये आध्यात्मिक ज्ञान किसी से भी कैसे सुन सकते हैं? दिस इज ऑल्सो साइंस. इसलिए प्रभु जी बार बार कहते हैं साइंस इज अ विज्ञान. यू कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एनीवन. यू हैव टू गो टू द ऑथराइज्ड पर्सन. आगे बढ़िए. Tatvatah in truth. Simply by knowing by historical facts that Krishna is born in such and such date, in such and such place, in such and such family, he did such and such activities. No.
One has to learn them in tattvataha, in truth. Then he becomes free from this bodily entanglement. हाँ, तो वो तो सब जानते हैं ना, भारत में तो सब जानते हैं। हाँ, कृष्ण कहाँ जन्म हुआ, हाँ, उनके माता पिता कौन थे, क्या क्या कार्य, सब जानते हैं। वो जानना आसान है, कुछ इतिहास, लेकिन वो तत्वतः का मतलब नहीं है। हाँ, तत्वतः का मतलब क्या है? ये विज्ञान को जाना, वास्तव में भगवान कौन है, उनके कार्य क्या है। हाँ, आगे बढ़े। Now, how that tattvataha in truth, the Krishna science, how one can understand Krishna science. This is explained in the 18th chapter. You will find this verse that bhaktya mam abhijanati yavan yasyami tattvataha. हाँ, तो that is the way to understand. भक्त्या माम अभिजानाति यावान्य। तो अगर कोई भक्ति नहीं करता है तो नहीं समझ सकता है, नहीं समझ सकता। ओके, so that is the meaning of tattvata. Okay, 10th verse. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। Being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me and thus they all attained transcendental love. तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि इस प्रकार जब व्यक्ति तत्वतः जानता है वो मेरे धाम आ सकता है। तो अभी ये 10वें श्लोक में भगवान कुछ प्रमाण दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अब तक कोई नहीं गया है, नहीं, बहुत सारे लोग जा चुके हैं। कैसे गए? वीत राग भय क्रोध, इन चीजों से मुक्त होकर और पूरी तरह से मनमया माम उपाश्रिता, मेरे शरण में आकर बहवो, बहुत सारे, ज्ञान तपस पूता, कैसे? शुद्धिकरण होके, मद भावम आगता। तो अभी श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं। ये राग भय क्रोध, इन 3 चीजों को समझने के लिए पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। As described above, it is very difficult for a person who is too materially affected to understand the personal nature of the Supreme Absolute Truth. Generally, people who are attached to the bodily conception of life are so absorbed in materialism that it is almost impossible for them to understand how the Supreme can be a person. Such materialistic cannot even imagine that there is a transcendental body which is imperishable, full of knowledge and eternally blissful. In the materialistic concept, the body is perishable, full of ignorance and completely miserable. Therefore, people in general keep this same bodily idea in mind when they are informed of the personal form of the Lord. For such materialistic men, the form of the gigantic material manifestation is supreme. Consequently, they consider the Supreme to be impersonal, and because they are too materially absorbed, the conception of retaining the personality after liberation from matter frightens them. When they are informed that spiritual life is also individual and personal, they become afraid of becoming persons again, and so they naturally prefer a kind of merging into the impersonal void. Okay, तो समस्या क्या है? जो साधारण भौतिकवादी लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि वो भौतिक चीज़ों से आसक्त हैं, अपने भौतिक धारणाओं से आसक्त हैं, तो इसलिए जब उनको बताया जाता है कि भगवान का भी कुछ रूप है तो वो क्या सोचते हैं? हमारा जैसे रूप हो, हमारा जैसे शरीर होगा। So they impose their own material conceptions on the Supreme, क्योंकि वो भौतिक चीज़ों से आसक्त है। तो इसलिए जब भगवान के बारे में बताया जाता है वो सोचते हैं कि हमारे जैसे ही भौतिक रूप होगा। दैट इज राग, अटैचमेंट टू मटीरियलिज्म। क्योंकि वो आसक्त हैं भौतिक चीज़ों से, तो इसलिए वो सोचते हैं कि भगवान का रूप भी भौतिक है हमारे जैसा। और फिर जब वो सोचते हैं कि भगवान का रूप भी भौतिक है, तो वो सोचते हैं अरे हमारा जो भौतिक शरीर है कितने क्लेशों का कारण है, कितना तकलीफ का कारण है।
तो फिर क्या भगवत धाम जाने के बाद भी वही? ये तो खतरनाक है। अभी भी तकलीफ, बाद में भी तकलीफ। तो इसलिए क्या होता है? भय भी दो जाते हैं। यह आध्यात्मिक जीवन का क्या लाभ फिर? अगर वैसे ही भौतिक शरीर प्राप्त होगा जिसमें इतने सारे बीमारी है, ये तकलीफ है, वो क्या फायदा? सो देयरफॉर दैट कॉजेस फियर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हाँ, आगे बढ़िए। Generally, they compare the living entity to the bubbles of the ocean, which merge into the ocean. That is the highest perfection of spiritual existence attainable without individual personality. This is a kind of fearful stage of life, devoid of perfect knowledge of spiritual existence. Furthermore, there are many persons who cannot understand spiritual existence at all. Being embarrassed by so many theories and by contradictions of various types of philosophical speculation, they become disgusted or angry and foolishly conclude that there is no supreme cause and that everything is ultimately void. Such people are in a diseased condition of life. हाँ, तो फिर इस प्रकार तो लोग सुनते हैं कि कुछ साधु लोग कहते हैं कि भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है, या कोई कहता है कि जीव परमात्मा में विलीन हो सकता है, कोई कहता है निर्विषय ब्रह्म में विलीन हो सकता है। तो इस प्रकार कितने सारे फिलॉसफीज है। ये सब सुनकर व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। क्या ये बकवास है? ये आध्यात्मिक जीवन बकवास, छोड़ दो। हाँ, तो ये विराग भय क्रोध। आगे बढ़िए। Some people are too muchly attached and therefore do not give attention to spiritual life. Some of them want to merge into the supreme spiritual cause, and some of them disbelieve in everything. Being angry at all sort of spiritual speculation out of hopelessness, this last class of men take to the shelter of some kind of intoxication, and their effective hallucinations are sometimes accepted as spiritual vision. हाँ, तो यही जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो वही हो रहा था। हाँ, तो लोग LSD लेकर वो सोच रहे थे ये आध्यात्मिक जीवन यही है, LSD। आगे। One has to get rid of all three stages of attachment to the material world: negligence of spiritual life, fear of spiritual personal identity, and the conception of void that arises from frustration in life. To get free from these three stages of the material conception of life, one has to take complete shelter of the Lord, guided by the bona fide spiritual master, and follow the discipline and regulative principle of devotional life. The last stage of the devotional life is called bhava, or transcendental love of Godhead. तो इस प्रकार जब हम ये तीन चीज़ों को हम त्याग देंगे, राग भय क्रोध, और पूरी तरह से भगवान का शरण लेंगे, गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करेंगे, तभी हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आगे श्रील प्रभुपाद जी भक्ति के 9 स्टेजेस के बारे में बता रहे हैं। सो दिस इज हाउ वन कैन get free from the material concept of life and achieve the abode of the Supreme Lord. तो ये पहला सेक्शन है जिसमें भगवान ने अपने बारे में ही दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया और अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा